Hello everyone and welcome back. So this is continuation of the terminology basically from agronomy. So we'll be looking into the other terms. So in this video we'll be looking into cropping system, farming system, mixed farming, cropping scheme, etc. So in the previous video we have discussed cropping pattern and factors affecting cropping pattern and different cropping pattern that are followed in different parts of India, right? So in this video, we are continuing with the terminology. So next term that we are going to discuss is cropping system. So you might have heard of this particular term or read somewhere many times. Okay, so what is this? Cropping system is basically, so to put it in very simple terms, cropping system is cropping pattern and the management of that particular crop. So how do you manage the crop? So it can be written as this formula: cropping system is equal to cropping pattern plus the management aspects of the crop. Now what do you mean by this? For example, a particular crop can be managed in different ways, right? So take for example, you have paddy. Okay, rice बोल लो या paddy बोल लो. So paddy crop है. Now this crop can be managed in different ways. So during the cultivation you can go for cultivation of paddy in many ways, right? जो बहुत common method है paddy cultivation का, it is submerged या फिर lowland cultivation, where the paddy is grown under submerged conditions. So you go for puddling. तुम field को पहले तैयार करते हो, puddling करते हो. Puddling is basically ploughing the field. Field को cultivate करते हो under standing water conditions, so that we make the soil so soft that when it settles it forms a barrier, right? So एक semi impermeable layer बनता है ताकि water percolate ना करे. So water does not easily percolate, so we can maintain a standing water condition during the cultivation, right? So soil structure को purposefully destroy किया जाता है in submerged condition, right? So lowland paddy cultivation में हम लोग soil को प्लव करते हैं अंडर स्टैंडिंग वाटर, तो सॉइल का जो भी स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. फॉर एग्जांपल तुम एक एनोलॉजी लो जहां पर एक बिस्किट है. बिस्किट विल मेंटेन इट शेप जब तक उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है. बहुत पूरा ड्राई होगा तो भी मेंटेन नहीं कर पाएगा, बट व्हेन इट हैज ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर. अब उस बिस्किट को तुम टी में डुबा रहे हो खाने के लिए. फॉर एग्जांपल पार्ले जी के बिस्किट को जब तुम टी में डुबाते हो, विद इन ए सेकंड यू हैव टू रिमूव इट, राइट? करेक्ट टाइम पे नहीं निकाला बिस्किट तो अगेन it will become mush and it will fall into the cup. So correct time पे निकाल के खाना है आपको. Now what is happening with the soil is the same thing that happened with the biscuit. अगर तुम गीले पानी में रखोगे ज़्यादा देर, तुम्हारा soil structure जो है under submerged condition, when everything is fully saturated, तुम्हारा soil structure destroy हो जाता है. Now why we are doing that? Because transplanting करने में easy होगा, so that you can easily transplant the paddy into the field. So the management of soil is very different in case of submerged cultivation when it is compared with direct seeded rice. Direct seeded rice में क्या करते हैं? You sow the rice same as in the case of as we do in wheat or other crops. So normally तुम sowing करते हो in the field and then you irrigate. It will germinate and come up, right? So standing water condition ऐसा कुछ नहीं है. जैसे wheat के अंदर cultivation करते हैं वैसा ही, या फिर other crop में जैसे cultivate करते हो. So you don't maintain any standing water condition. So direct seeded rice में तुम्हारा soil and water management, no standing water, normal irrigation दोगे. एंड जो तुम्हारा lowland cultivation है पैडी का बहुत अलग है. यहां पर जो soil and water का management हो रहा है, it is totally different compared to direct seeded rice. यहां पर in case of submerged condition,
वी आर डिस्ट्रॉइंग द सॉइल स्ट्रक्चर, वी आर यूजिंग लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि सबमर्ज कंडीशन में उनको कल्टिवेट कर रहे हो ना, यू हैव टू मेंटेन स्टैंडिंग वाटर कंडीशन थ्रू आउट द क्रॉप, सो बहुत ज्यादा पानी यूज होता है, लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड, इट इज इवापोरेटेड एंड इट इज ऑल्सो percolating slowly, so lot of water is wasted or utilized, you can say, in case of submerged cultivation, whereas the soil structure is not destroyed, वहां पर puddling नहीं कर रहे हो तुम, soil structure is maintained and less amount of water is used. So you see यहाँ पर जो मैनेजमेंट टेक्निक्स है सॉइल एंड वाटर को जो तुम मैनेज कर रहे हो वो टोटली डिफरेंट है इन दोनों केसेस में. इन द फर्स्ट केस एंड इन द सेकंड केस सेम क्रॉप इज कल्टिवेटेड बट मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स जो है दे आर कंप्लीटली डिफरेंट, है ना. इन फर्स्ट केस जहां पर सबमर्ज कंडीशन में ग्रो कर रहे हो लोलैंड कल्टीवेशन में, वहां पर एक्सेस वाटर यूटिलाइज हो रहा है, राइट, सॉइल स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड एंड यू डू दिस व्हेन यू हैव इरिगेशन फैसिलिटी. whereas in direct seeded rice वहां पर क्या कर रहे हो तुम, सॉइल को डिस्ट्रॉय, सॉइल स्ट्रक्चर इज नॉट डिस्ट्रॉयड, इरिगेशन वाटर इज यूज्ड बट बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हो बिकॉज यू डोंट हैव टू मेंटेन स्टैंडिंग वाटर कंडीशन. सो सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट टैक्टिक्स आर कंप्लीटली डिफरेंट इन बोथ द केसेस. मैनेजमेंट जो रिसोर्सेज का हो रहा है वो कंप्लीटली डिफरेंट है. और एक एस्पेक्ट भी है, लोलैंड कल्टीवेशन इज मेनली डन फॉर वीड मैनेजमेंट. यहां पर जो है अंडर सबमर्ज्ड कंडीशन वीड जो है वो एक्सेप्ट फ्यू जो तुम्हारे डाइकॉट वीड्स हैं मेनली दे विल नॉट बी एबल टू विथस्टैंड स्टैंडिंग वाटर कंडीशन एंड वीड मैनेजमेंट इजी होता है. यहाँ पर वीड कंट्रोल मेन, यहाँ पर जो मेन आइडिया बिहाइंड हैविंग लोलैंड पैडी कल्टीवेशन, जो मेन गोल है वो बेसिकली वीड मैनेजमेंट है. whereas in direct seeded rice यहाँ पर वीड मैनेजमेंट डिफिकल्ट होता है, यहाँ पर वीड मैनेजमेंट डिफिकल्ट होता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा केयर यू हैव टू टेक, यू हैव टू यूज मोर हेर्बिसाइड्स इन केस ऑफ डायरेक्ट सीडेड राइस. सो ये जो सबमर्ज कंडीशन है और डायरेक्ट सीडेड राइस है दोनों में मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स बहुत डिफरेंट है. भले ये एक ही क्रॉप है, इन बोथ यू हैव सेम क्रॉप, राइस ही ग्रो कर रहे हो ना, लेकिन मैनेजमेंट देखो टोटली डिफरेंट है बोथ केसेस में. सो क्रॉपिंग पैटर्न, बिकॉज इन बोथ केसेस वी आर ग्रोइंग राइस, तो क्रॉपिंग पैटर्न तो सेम ही है लेकिन मैनेजमेंट अलग है, दोनों अलग अलग जगह पर. सो यू कैन गो फॉर सबमर्ज्ड कल्टीवेशन और लोलैंड कल्टीवेशन वेयर यू हैव इरिगेशन फैसिलिटीज, और जहां इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, रेन फेड इरिगेशन है या फिर where irrigation water is not available in plenty, you can go for direct seeded rice. Management of soil, water, weeds is totally different in both the cases, though crop is same. क्रॉप सेम है लेकिन मैनेजमेंट टोटली डिफरेंट है. सो क्रॉपिंग पैटर्न दोनों जगह में सेम ही है, राइस ही ग्रो कर रहे हो लेकिन क्रॉपिंग सिस्टम दोनों जगह का अलग है. समझ में आ रहा है? सो there is a difference between cropping pattern and cropping system. So crop plus its management, that is called as cropping system. So pattern of crop taken up for a given piece of land or order in which crops are cultivated on a piece of land over a fixed period associated with soil management practices such as tillage, how you are ploughing, फर्टिलाइजर कैसे अप्लाई कर रहे हो, इरिगेशन, जो मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स हैं that is included in the definition of cropping system. So cropping system is cropping pattern plus management of the crops. So management aspect जब तुम add कर देते हो it becomes cropping system. Okay, so differences क्या है, what is the difference between cropping pattern and cropping system? So let us quickly go through the differences, then we can move on to different terminology, other terms, right? So first it is basic explanation कि cropping pattern क्या होता है, the proportion and sequence of crops grown in an area over a period of time, that is called as क्रॉपिंग पैटर्न. मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं या फिर जो क्रॉप रोटेशन फॉलो कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न. क्रॉपिंग सिस्टम, इट इंक्लूड्स क्रॉप कॉम्बिनेशन along with मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेस. रिसोर्सेस को कैसे मैनेज कर रहे हो तुम, वाटर, सॉइल, प्लविंग कैसे कर रहे हो, इरिगेशन कैसे दे रहे हो, वीड कैसे मैनेजमेंट कर रहे हो, फर्टिलाइजर कैसे अप्लाई कर रहे हो, ऑल दैट comes under the management. So crop plus management. क्रॉपिंग पैटर्न में सिर्फ क्रॉप, कौन सा क्रॉप ग्रो कर रहे हो मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स, दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न.
when you add management to the crop, that becomes cropping system. So scope, the focus is mainly on the crop. कौन से crop grow कर रहे हो बस, right? The focus is mainly on the arrangement and rotation of the crops. कौन से crops grow कर रहे हो और rotation what you are following. यहाँ पर थोड़ा सा broader scope है because crops तो है ही इसमें, plus it includes management, right? It includes crops, soil management, inputs को कैसे manage कर रहे हो, use of technology, all that becomes the part of management. So crops plus management is cropping system. Only कौन से crops grow कर रहे हो, when it is only the crops, it is cropping pattern. It involves crop rotation, crop sequence, crop combination, what crops you are growing, it is cropping pattern. So main goal क्या है, to maximize, cropping pattern is to maximize land utilization and improve crop productivity. Basically you will grow a particular crop that is compatible with the climate, you will have marketing facility that will give you more profit. ऐसा ही crop grow करोगे, suitability to the land and all that. यहाँ पर मेन गोल क्या है, टू इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल्सो यू विल यूज सच टेक्निक्स दैट विल नॉट हार्म द सॉइल, दैट विल नॉट वेस्ट वाटर. तो यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी एंड रिसोर्स यूज एफिशिएंसी भी इंक्लूडेड है. ओके, नाउ द टर्म हियर यू सी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यूज किया, यहाँ पर तो व्हाट क्रॉप्स यू ग्रो, दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न, द चॉइस और मिक्स ऑफ द क्रॉप्स. So here you see mixed farming बोल के एक term use किया. Generally farming is a broader term. We will discuss what is farming. Because we are managing the inputs and resources. So fertilizers, manures को कैसे manage करते हो? So manure comes from cattle. So in that sense, we sometimes use the term farming. क्रॉपिंग सिस्टम में फार्मिंग भी टर्म यूज करते हैं, बट जनरली यूज नहीं करना चाहिए. फार्मिंग इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म, right? So intercropping, relay cropping, integrated farming system, because their inputs, how inputs are handled, when that aspect is taken, we sometimes include these terms under cropping system, but generally they should not be used. मैं बाद में बताऊंगा क्यों. So that was cropping system. Now farming system. So I told you farming system is a very broader term. Farming is a broader term. Farming के अंदर different enterprises they fall under farming, right? So इसके अंदर क्रॉप्स आते हैं, कैटल, पोल्ट्री, हनी बी, etc. So many enterprises when they are taken together, it is called as farming. So farming के अंदर ही क्रॉपिंग जो टर्म है, it falls under. So क्रॉपिंग जो है, it includes crop as an enterprise. लेकिन फार्मिंग में बहुत सारे एंटरप्राइजेस आते हैं. फार्मिंग इंक्लूड्स different enterprises, उनका combination. Okay, so farming is a broader term compared to cropping. फार्मिंग जो है क्रॉपिंग के कंपैरिजन में ब्रॉडर टर्म है. सो इसमें क्रॉप्स आता है, ओके, क्रॉपिंग, कैटल आ गया इसके अंदर. सो एनिमल हस्बेंड्री इज आल्सो इंक्लूडेड, पोल्ट्रीज, हनी बी, एपीकल्चर. सो दीज आर डिफरेंट एंटरप्राइजेस दैट फॉल अंडर फार्मिंग. तो क्रॉप्स एक एंटरप्राइज है. सो क्रॉपिंग सिस्टम जब हम लोग बोलते हैं तो वी आर पर्टिकुलरली डीलिंग विद क्रॉप्स. फार्मिंग जब हम लोग बोलते हैं तो क्रॉप्स के साथ other enterprises are also included. So 2 or more enterprises, so crops with cattle or crops plus cattle plus poultry. एक farmer है जिसके पास 2 acres of land है where he is growing crops. He also have 3 or 4 buffaloes plus 10 chicken. तो उसके पास poultry भी है, animal husbandry also and cropping. So when 2 or more enterprises are taken together, it is called as farming. क्रॉपिंग जो है पर्टिकुलरली क्रॉप्स आर द सोल एंटरप्राइज, तब उसको क्रॉपिंग बोलते हैं हम लोग. जब क्रॉप्स के साथ दूसरे एंटरप्राइजेस भी हैं, दैट बिकम्स फार्मिंग. ऑलराइट, सो फार्मिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम वी हैव डिफाइंड. सो क्रॉपिंग सिस्टम जो है क्रॉप्स प्लस मैनेजमेंट
राइट। फार्मिंग सिस्टम में मल्टीपल एंटरप्राइजेस है, यानी क्रॉप्स के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी हो सकता है, पोल्ट्री भी हो सकता है, एपीकल्चर, राइट, other enterprises are also included. So farming is a broader term when compared to cropping. So it represents an appropriate combination of farm enterprises such as cropping system plus livestock, poultry, fisheries, forestry, honeybees, etc., etc., and the means available to the farmer to raise them for increasing the profitability. So means available to the farmer माने inputs to raise them for profitability. तो यहां पर मेन गोल क्या है भाई, या मेन एम क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी. We are combining these enterprises to increase the profit of the farmer. Profitability is the main goal, but we have to also take care that we do not harm the resources. Soil या water resources को waste या harm नहीं करना है. Okay, by maintaining the soil fertility and without wasting the resources, by using the resources more efficiently, gaining more profit. That is the goal of farming system. So higher profitability without altering the ecological balance or without harming the resources, that is the main goal of, main objective of your farming system. So cropping is an important part of farming system. यानी क्रॉप भी तो एक एंटरप्राइज है, उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री भी है, पोल्ट्री भी है, ऑल द अदर एंटरप्राइजेस आर आल्सो देयर, बट क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट सिस्टम, sorry, crop is an important component. So farming system is a very broader term, उसमें multiple enterprises आते हैं, अलग अलग enterprises. Cropping system is one component under farming system. I hope you understand the difference between farming system and cropping system. Now there is another term, mixed farming. Now here you see, जब भी farming तुम term देखते हो ना, whenever you see the term farming, multiple enterprises, याद रखना, मल्टीपल एंटरप्राइजेस, यानी क्रॉप्स, कैटल, पोल्ट्री, इनमें से कुछ भी हो सकता है. दो या दो से ज्यादा एंटरप्राइजेस जब कंबाइन करते हो तो इट बिकम्स फार्मिंग. सो फार्मिंग आया है यहां पर. ओके, यहां पर हम लोग बोल रहे हैं मिक्स्ड फार्मिंग. सो हाउ इट इज डिफरेंट इन द प्रीवियस टर्मिनोलॉजी? पहला टर्म क्या देखा था हम लोगों ने? फार्मिंग सिस्टम, राइट. फार्मिंग सिस्टम एंड मिक्स्ड फार्मिंग, दोनों में फार्मिंग टर्म है, यानी दोनों में मल्टीपल एंटरप्राइजेस है. देन हाउ दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? तो ये जो पहला टर्म है फार्मिंग सिस्टम, मिक्स्ड फार्मिंग से अलग कैसे है? द की डिफरेंस इज द गोल. जो एम या ऑब्जेक्टिव या गोल है, वो उसमें की डिफरेंस है. ओके, दोनों में मल्टीपल एंटरप्राइजेस हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस है दैट इज द गोल. तो यहां पर मिक्स्ड फार्मिंग में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल नहीं है, यहां पर गोल जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग. ओके, यहां पर ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के केस में वी यूज दिस पर्टिकुलर टर्म. सो यहां पर ऐसे फार्मर्स यहां पर जिनके पास 2-3 एकड़ हैं या फिर उससे कम है, who have small piece of land, जहां पर प्रॉफिट तो जब इकोनॉमी ऑफ स्केल होगा तब प्रॉफिट मिलता है. 10 एकड़ या 20 एकड़ जब तुम्हारे पास जमीन है, बहुत ज्यादा है, तब तुमको सिग्निफिकेंट प्रॉफिट दिखेगा. 1-2 एकड़ में, इन 1-2 एकर्स यू विल नॉट सी सिग्निफिकेंट प्रॉफिट. तो इकोनॉमी ऑफ स्केल जब होगा, लार्ज स्केल में जब करोगे तो तुमको प्रॉफिट मिलेगा. छोटे फार्म्स जहां पर 1-2 एकड़ है, वहां पर मेन जो गोल होता है अपना घर चलाना, सबसिस्टेंस. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वहां पर प्रॉफिट आएगा ही नहीं. ओके, प्रॉफिट अपना जो कितना कॉस्ट लगाया उतना मिल जाए, वो एक बहुत बड़ी बात है. सो यहाँ पर मेन गोल जो है फैमिली की नीड्स को फुलफिल करना, वो इंपॉर्टेंट गोल है यहाँ पर सबसिस्टेंस फार्मिंग. यानी फैमिली के जो नीड्स हैं, क्रॉप से फैमिली का जो है ग्रेन या कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा. पोल्ट्री अगर तुम्हारे पास 7-8 मुर्गी है तो वहां से एग्स जो मिल रहे हैं, तो फैमिली का जो प्रोटीन नीड्स है वो फुलफिल होता है. कैटल अगर एक दो भैंस है तो वो 1-2 भैंस से जो बफेलो से जो मिल्क आएगा वो थोड़ा बहुत बेच लेंगे, थोड़ा बहुत फैमिली का नीड्स फुलफिल होगा उससे.
राइट। यहां पर मेन गोल क्या है? सब्सिस्टेंस, जिंदा रहने के लिए, टू सर्वाइव एंड टू मिनिमाइज द रिस्क। क्योंकि सपोज अगर एक ही एंटरप्राइज है, फॉर एग्जांपल सपोज क्रॉप है, द फार्मर, उसके पास 2 एकड़ का लैंड है, उसने क्रॉप लगा दिया। देखो ये क्रॉप का जो ड्यूरेशन है, 4-5 महीने लगा लो, फ्रॉम प्लविंग द लैंड टू हार्वेस्टिंग, मार्केटिंग, वो सब करा के 5-5.5 महीने लग जाते हैं। वो मार्केटिंग होके पैसा हाथ में आने तक लगा लो 5.5-6 महीने तो लग जाते हैं। सो ये 5.5-6 महीने तक क्रॉप लगा के इंतजार करना पड़ेगा फार्मर को, ही हैज टू वेट। सो ये 6 महीने इनकम कहां से आएगा फार्मर को, राइट? सो इसीलिए मल्टीपल एंटरप्राइजेस लेते हैं, ताकि फार्मर का घर चलता रहे। तो जो 1-2 भैंस है उसके पास, बफल है, उससे रोज 4-5 लीटर जो मिल्क आएगा, राइट, उसको वो बेच के थोड़ा बहुत इनकम मिलता रहेगा उसको। द पोल्ट्री एग्स ही कैन कंज्यूम ए फ्यू एंड सेल द रेस्ट ऑफ देम इन द मार्केट। तो घर चलता रहे। हाँ, रिस्क मिनिमाइज होता है। अगर तुमने सारा पैसा एक ही एंटरप्राइज में लगाया, सपोज साइक्लोन आ गया, तुम्हारा पूरा क्रॉप बर्बाद हो गया, साइक्लोन आके पूरा क्रॉप लॉर्जिंग हो गया एंड द एंटायर क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड। सो नाउ चलो, इफ यू हैव टेकन इंश्योरेंस, थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन क्रॉप तो लॉस हो गया ना, प्रॉफिट तो नहीं रहा अभी। सो टू मिनिमाइज द रिस्क, इवन इफ वन एंटरप्राइज फेल्स, फार्मर विल हैव गारंटीड इनकम फ्रॉम अदर एंटरप्राइजेस। तो रिस्क मिनिमाइजेशन एंड सब्सिस्टेंस इज द मेन गोल। सो दोनों में देखो फार्मिंग है, दोनों में मल्टीपल एंटरप्राइजेस हैं, लेकिन फार्मिंग सिस्टम में गोल क्या था? मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट विदाउट altering the ecological balance. Mixed farming में गोल क्या है? Here the goal is to provide for the family subsistence and risk minimization, ताकि अगर एक एंटरप्राइज फेल भी होता है तो दूसरे एंटरप्राइज से इनकम आते रहे। दैट इज द गोल। ओके, सो वी हैव सीन फार्मिंग सिस्टम एंड मिक्स्ड फार्मिंग। ओके, नेक्स्ट term is sole cropping. Sole cropping is, suppose this is your piece of land, तुमने अपने लैंड में एक वेराइटी लगाया, सो वेराइटी ऑफ ए सिंगल क्रॉप, यू आर नॉट कंबाइनिंग डिफरेंट क्रॉप्स, एक ही क्रॉप और उसका भी एक ही वेराइटी। ओके, सो इट इज डिफाइंड एज कल्टीवेशन ऑफ वन क्रॉप वेराइटी अलोन इन प्योर स्टैंड्स एट नॉर्मल डेंसिटी। यानी जो क्रॉप का स्पेसिंग है, सपोज क्रॉप तुमने जो यहां पर लगाया है ऐसे, सो दीज आर द रोज, ऐसे रोज में तुमने लगाया है। सो बिटवीन द टू रोज the spacing is suppose 30 centimeter, and between two plants in a row the spacing is suppose 15 centimeter. So हम लोग ऐसे लिखते हैं 30 into 15 centimeter is the spacing. So ये normal density है। Okay, so when you're growing single variety of a crop in pure stand, it is called as sole cropping. तो यहाँ पर कोई भी intercropping, दो क्रॉप्स को मिक्स नहीं किया तुमने, यू आर नॉट ग्रोइंग टू क्रॉप्स together, single variety of a single crop is grown, that is called as sole cropping. So I am growing variety A of rice, सिर्फ मैंने राइस लगाया है, उसका A variety, that is called as sole cropping. Then we have a term called as monoculture. This is the first term, this is the second term, monoculture. So monoculture, and there is another term called monocropping. So we'll discuss monoculture first. So monoculture is basically growing the same crop again and again on the same piece of land. So suppose this is your land, right? This is your land, and you are growing Kharif and Rabi. Right. So you are growing same crop again and again. So in certain parts of India where irrigation is available, especially in the delta regions of Godavari and Kaveri, जहाँ पर water available होता है, वहां पर 3 बार भी crop लगते हैं। ओके, सो खरीफ में भी राइस लगाया है उन्होंने, रबी में भी राइस, because the temperatures are ambient, and also in Zaid
राइस, और यू कैन लीव इट फैलो, कुछ नहीं लगाओगे, सिर्फ फैलो भी छोड़ सकते हो। सो व्हेन यू आर ग्रोइंग सेम क्रॉप अगेन एंड अगेन, so you are growing crop twice or thrice a year but on the same piece of land वही crop को repeat कर रहे हो, that is called as monoculture. Okay, so this is called as monoculture, right? अब monocropping क्या है? There is another term called as monocropping. Monocropping means you grow a single crop, you grow single crop on your land in a year. सिर्फ खरीफ में तुम ग्रो करते हो बिकॉज उस टाइम पे मॉनसून आ रहा है तुमको, यू आर ग्रोइंग अ पर्टिकुलर क्रॉप ओनली इन द खरीफ सीजन बिकॉज ऑफ मॉनसून, रेस्ट ऑफ द सीजन देयर इज नो वाटर अवेलेबिलिटी, सो यू आर नॉट ग्रोइंग एनी क्रॉप। तो साल में सिर्फ एक ही क्रॉप लगाते हो बिकॉज खरीफ में ही तुम्हारा साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, यू आर ग्रोइंग ओनली वन क्रॉप। सो ग्रोइंग ऑफ ओनली वन क्रॉप ऑन अ piece of land, okay, only one crop on a piece of land, so साल में सिर्फ एक ही क्रॉप लगा रहे हो, उसको बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। अब बहुत बार यू माइट हैव सीन मोनोक्रॉपिंग एंड मोनोकल्चर, ऐसे स्लैश लिख के दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। सो मोनोक्रॉपिंग एंड मोनोकल्चर एक ही है बोल के इस तरह से यूज करते हैं टर्म को, बट मोनोक्रॉपिंग एंड मोनोकल्चर में डिफरेंस है। मोनोकल्चर का मतलब है एक ही क्रॉप ग्रो रहे हो, यू आर ग्रोइंग ओनली वन क्रॉप अगेन एंड अगेन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। ओके, इन दिस केस ये वाला एग्जांपल है हियर, यहां पर तुम एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे हो, इट इज कॉल्ड एज मोनोक्रॉपिंग, साल में एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे हो। ओके, बट अगर तुम सेम क्रॉप ग्रो करोगे, सपोज कॉटन है, यू आर ग्रोइंग कॉटन क्रॉप वंस ए ईयर, एक बार ही ग्रो करोगे कॉटन, सॉरी, साल में सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे हो कॉटन, ओके, दैट इज मोनोक्रॉपिंग। बट this year also you are growing cotton, next year also you will grow cotton, previous year also you have grown cotton, तो पिछले साल भी कॉटन ग्रो किया था, इस बार भी कॉटन ग्रो कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर भी कॉटन ग्रो करोगे, तो यहां पर क्या होगा, अगेन एंड अगेन सेम क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। तो यहां पर मोनोक्रॉपिंग एंड मोनोकल्चर बोथ आर हैपनिंग हियर। यहां पर तुम मोनोक्रॉपिंग भी कर रहे हो, साल में एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे हो एंड हर बार वही क्रॉप ग्रो कर रहे हो, एवरी ईयर यू आर ग्रोइंग द सेम क्रॉप। सो मोनोक्रॉपिंग एंड मोनोकल्चर बोथ आर हैपनिंग हियर। ओके, बट अगर तुम साल में एक ही क्रॉप ग्रो करते हो, बट फर्स्ट ईयर यू हैव ग्रोन कॉटन, फर्स्ट ईयर तुमने कॉटन ग्रो किया, नेक्स्ट ईयर यू हैव गॉन विथ सम अदर क्रॉप, सो सपोज ज्वार ग्रो किया, अगले साल तुमने क्रॉप बदल दिया, तो ये मोनोक्रॉपिंग है बिकॉज यू आर ग्रोइंग ओनली वन क्रॉप, तो दिस इज मोनोक्रॉपिंग, बट इट इज नॉट मोनोकल्चर, क्योंकि सेम क्रॉप अगेन एंड अगेन ग्रो नहीं कर रहे हो। सो मोनोक्रॉपिंग हो रहा है लेकिन मोनोकल्चर नहीं है ये। फर्स्ट केस में हर बार कॉटन ग्रो कर रहे हो, एवरी ईयर यू आर ग्रोइंग कॉटन, वहां पर मोनोक्रॉपिंग भी हो रहा है, मोनोकल्चर भी है, बट यहां पर इसको मोनोक्रॉपिंग बोलेंगे, ईयर में एक ही बार तुम क्रॉप लगा रहे हो लेकिन हर साल अलग अलग क्रॉप लगा रहे हो। सो हियर इट इज मोनोक्रॉपिंग बट नॉट मोनोकल्चर। गॉट इट? द थर्ड टर्म इज cropping intensity. So cropping intensity is given with a formula gross cropped area divided by net sown area into 100. So gross cropped area by net sown area into 100. So this is the formula. So क्रॉपिंग इंटेंसिटी जानने के लिए पहले ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है, नेट सोन एरिया क्या है, ये दोनों तुमको पता होना चाहिए। सो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइड बाय नेट सोन एरिया इनटू 100. सो वी विल
see these terms. So first, net sown area. What is net sown area? So I have land, तो मेरे पास एक लैंड है, 1 हेक्टेयर का लैंड है, ठीक है. सो हियर ये जो है, सपोज दिस लैंड इज इन से महाराष्ट्र में विदर्भा रीजन, ड्राई रीजन में रेनफेड फार्मिंग होता है, वहां पर है. सो नेट सोन एरिया क्या है? यू विल ग्रो ओनली वन क्रॉप, सिर्फ एक क्रॉप ग्रो होता है साल में, मोनोक्रॉपिंग होता है यहाँ पर, ओनली वन क्रॉप पर ईयर. सो यहाँ पर मोनोक्रॉपिंग हो रहा है, से कॉटन क्रॉप इज ग्रोन, राइट. सो इसको एक ही बार गिनेंगे, ये जो लैंड एरिया है ना, इट इज काउंटेड ओनली वंस, एक ही बार उसको गिनोगे. सो नेट सोन एरिया इज द टोटल लैंड यूज्ड फॉर क्रॉप्स काउंटेड ओनली वंस, इसको बस एक ही बार काउंट करते हैं. टोटल एरिया ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड एटलीस्ट वंस इन ईयर, साल में एक बार, इसको एक ही बार काउंट करेंगे, ठीक है. सो ऐसे इंडिया में जहां पर एटलीस्ट एक बार क्रॉप ग्रो होता है, वो पूरा लैंड कितना है? एटलीस्ट वन क्रॉप ग्रो होना चाहिए, वो पूरा लैंड कितना है, ठीक है. दैट इज नेट सोन एरिया. नाउ सपोज एक लैंड है जो तुम्हारा गोदावरी डेल्टा में है, ओके, गोदावरी डेल्टा है, वहां पर लैंड है, ओके. यहाँ पर 3 सीजन है, तीनों सीजन में पैडी ग्रो कर रहे हो, राइस राइस राइस, ओके. सो यहां पर भी 1 हेक्टेयर है, बट यहां पर 3 क्रॉप्स कल्टिवेट हो रहे हैं. यू आर कल्टिवेटिंग 3 क्रॉप्स, 1 क्रॉप एवरी सीजन, तो 3 क्रॉप्स यहां पर कल्टिवेट कर रहे हो. इन द प्रीवियस केस ओनली 1 सीजन वाज कल्टिवेट, यहां पर 3 क्रॉप्स हैं. सो यहां पर तुम इसको 3 बार गिनोगे, 3 इंटू 1 हेक्टेयर, यहां पर एक ही बार काउंट करोगे, जबकि यहां पर 3 बार, ये 3 हेक्टेयर हो जाएगा, 3 बार इसको काउंट करोगे तुम, ठीक है. सो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इंक्लूड्स टोटल लैंड सोन इवन if it is planted with crops more than once in a year. तो जहां जहां पर दो सीजन में कल्टिवेट हो रहे हैं या 3 सीजन में कल्टिवेट हो रहे हैं, उसको 3 बार या 2 बार काउंट करोगे. सपोज एक और लैंड है जहां पर सिर्फ रबी एंड खरीफ में कल्टिवेट होता है 1 हेक्टेयर, सो इट विल बी 2 इंटू 1 हेक्टेयर. कुछ जगह पे 3 बार भी कल्टिवेट करते हो तो 3. So net sown area is counting only once, a particular land will be counted only once. But कुछ ऐसे लैंड है जहां पर, तो जब नेट सोन एरिया आएगा तो एक बार ही इसको काउंट किया जाएगा. सो ओनली 1 हेक्टेयर विल बी टेक, ये भी 1 हेक्टेयर, ऊपर वाला भी 1 हेक्टेयर. सो एक बार ही काउंट होगा नेट सोन एरिया. पर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में यहां पर 3 हेक्टेयर काउंट होगा, यहां पर 2 हेक्टेयर काउंट होगा. So obviously gross cropped area will be higher in value compared to net sown area. Gross cropped area हमेशा ज्यादा रहता है, क्योंकि उसमें तुम मल्टीपल टाइम्स जो कल्टिवेट कर रहे हो उसको ऐड कर रहे हो. Whereas in net sown area the land will be counted once. So इंडिया का जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, इट इज एट प्रेजेंट, जो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 155.4, it is the intensity. So gross cropped area by net sown area into 100. So this is the cropping intensity of India according to the latest. ठीक है. Now cropping scheme क्या है? So this is our last term. Cropping scheme is, तुम कोई भी क्रॉप रोटेशन फॉलो करने से पहले एक प्लान बनाते हो. So you have your piece of land. So you will plan it, मैं क्या क्रॉप लगाऊंगा, तुम देखोगे क्लाइमेट के हिसाब से कौन सा क्रॉप सही रहेगा. You will see the market availability. ऐसा क्रॉप लगाओगे जहां पर लेबर का ज्यादा यूज ना हो, वरना तुम्हें लेबर अवेलेबिलिटी भी चेक करना पड़ेगा.
इनपुट्स अवेलेबल है कि नहीं, सो यू विल प्लान एवरीथिंग. सो ये तुम्हारा प्लान जो है कि क्या क्रॉप लगाओगे, खरीफ, रबी, जैद, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट अवेलेबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन, विच क्रॉप्स आर सुटेबल. तो ये जो तुम प्लान बनाओगे तो कि मैं अपने लैंड पे क्या क्या लगाऊंगा, जैद में शायद लगाऊं या ना लगाऊं, irrigation facilities depending upon whether they are available or not, so I may leave the zaid season fallow or I may go for green manuring, or मैं कल्टीवेट नहीं करूंगा, फैलो छोड़ दूंगा. सो प्लान जो बनाते हो ना, सीक्वेंस ऑफ क्रॉप्स क्या लगाऊंगा, व्हाट रोटेशन विल आई फॉलो, दैट इज कॉल्ड एज स्कीम. ये प्लान है basically. What are you going to do with your land? So plan according to which crops are raised on individual plots of farm with an objective of getting maximum returns. So ये basically plan है, उसके accordingly तुम crops लगाओ. So your plan should be in such a way that you should not degrade the soil. तो ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारा क्रॉप रोटेशन जो भी तुम लगाओगे कि सॉइल डिग्रेड हो जाए या उसका फर्टिलिटी खत्म हो जाए या उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिस्ट्रॉय हो. सो यू हैव टू मेंटेन द फर्टिलिटी एंड मेंटेन द सॉइल हेल्थ सो दैट इन लॉन्ग टर्म यू विल हैव बेनिफिट, सस्टेनेबल यील्ड्स तुमको मिलते रहें. सो सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप यील्ड्स आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग विच क्रॉपिंग प्रोग्राम टू फॉलो. तुम सॉइल का हेल्थ देखोगे, सॉइल का फर्टिलिटी कैसा है, उस हिसाब से तुम अपना क्रॉप रोटेशन प्लान करोगे. सो दिस प्लान जो फिजिकल तुम्हारा पेपर तुम्हारे पास है, क्या क्या लगाऊंगा, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉपिंग स्कीम. Okay, so you have to, before you choose the crop, you have to see whether labor availability is there, whether inputs are available for this particular crop. तुम्हारे पास उतना कैपिटल है कि नहीं, क्लाइमेट सूटेबल है कि नहीं, सॉइल सूट होगा कि नहीं होगा, मार्केट अवेलेबिलिटी है कि नहीं, लॉजिस्टिक्स, क्या मार्केट तक ले जाने के लिए मुझे ज्यादा पैसा लगेगा, ये सब ऐड होता है लास्ट में. ओके, सो ये तुम्हारे कॉस्ट में ऐड होगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये सब कुछ. सो बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स यू विल प्रिपेयर अ प्लान, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉपिंग स्कीम. ऑलराइट, सो दैट विल बी all for this video. We have discussed certain terms. We'll continue in the next video. So please do subscribe. हर दिन 2-3 वीडियो सब मैं डालता रहूंगा before the prelims. Okay, so we'll have 50-60 videos before you appear in the prelims. So please do subscribe so that you will have the notice, or it will be notified to you as soon as a video drops. All right, so thank you very much.